Good morning, students. In this lecture, we'll be discussing about the Mughal Rajput relations. From time to time, the various Mughal emperors had important relationships which they had established with the with the Rajputs. So we'll discuss in detail about the various Mughal emperors who had established relation with the भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी और बाबर के पश्चात हम देखेंगे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब ने शासन या सत्ता संभाला और इन सभी मुगल सम्राटों के राजनीतिक इतिहास में भारतीय राजपूत राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो हम विस्तृत रूप से हम इसकी चर्चा करेंगे. So, as the Mughal Empire was established in 1526 by the Mughal Emperor Babur, and hence after him Humayun, who succeeded him, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb, they became the Mughal emperors, and all these Mughal emperors had established their relationship with the Rajputs, and in their political history the Rajput kings had played a major role. So we'll discuss in detail one by one about the relationship between the Mughal and the Rajputs. To begin with, we'll first discuss about Babur and the Rajput policy or relation with the Rajputs. As Babur had no planned policy towards the Rajputs, he had to fight against Rana Sanga of Mewar and Mandini Rai of Chanderi, because this was necessary for the establishment and safety of his empire in India. On both the occasions, he declared jihad and assumed the title of Ghazi after his success and raised minarets of the heads of the Rajputs. But he married Humayun with one Rajput princess and employed Rajputs in the army. Thus he neither tried to befriend Rajputs nor regarded them as his permanent enemies. इस तरह हम देखते हैं कि बाबर की राजपूतों के प्रति कोई भी सुनियोजित नीति नहीं थी, पहले से कुछ प्लान नहीं था, ना ही उन्हें योजना पहले से बनाई थी कि उनके साथ कैसा संबंध रखना है. उसे मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी की मेदिनी राय के खिलाफ उन्हें युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था कि दोनों अवसरों पर उन्हें अपनी सफलता के बाद जिहाद की घोषणा की और राजपूतों के सिर की मीनारों को उठाया. लेकिन उन्हें एक राजपूत राजकुमारी के साथ उन्होंने हुमायूं का विवाह कराया और राजपूतों को सेना में नियुक्त किया. इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतों से ना उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की और ना ही उन्होंने उन्हें अपना स्थायी दुश्मन माना था. इस प्रकार बाबर ने इस प्रकार के संबंध स्थापित किए थे, ना ज्यादा दुश्मनी थी ना ज्यादा दोस्ती थी. Now we'll discuss about Humayun. Humayun continued the policy of his father regarding the Rajputs. However, he lost one good opportunity to befriend the Rajputs of Mewar. He did not help Mewar against Bahadur Shah of Gujarat, even when Rani Karnavati of Mewar had offered to become his sister. He had failed to get support of Maldev of Marwar against Sher Shah. जहाँ तक हम हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं ने राजपूतों के बारे में अपने पिता की नीति को जारी रखा और हालांकि उसने मेवाड़ के राजपूतों से दोस्ती करने का एक अच्छा अवसर भी खो दिया. उन्होंने मेवाड़ को गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ भी मदद नहीं की और ऐसा ना करने से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मौका खो दिया. और जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने उनको बहन बनने की पेशकश की थी, उन्होंने एक राखी भेजी थी, तो इसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था. वो शेर शाह के खिलाफ मारवाड़ के मालदेव को समर्थन पाने में भी असफल रहे. तो इस प्रकार उन्हें मौका मिला, बहुत सारे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन उन्होंने मौका खो दिया. अब हम देखेंगे अकबर के बारे में. अकबर विशेष रूप से अकबर की जो नीति थी, अकबर का जो संबंध था राजपूतों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था, जिसका विशेष उल्लेख किया जाता है, जो बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण है. So we'll see about the features of Akbar's Rajput policy.
First of all, we see that Akbar was the first Mughal emperor who pursued a planned policy towards the Rajputs. Various factors participated in the formation of his Rajput policy. As Akbar was an imperialist and he desired to bring under his rule as much territory of India as he could be possible for him. Therefore, it was necessary to bring the Rajput rulers under his suzerainty. And Akbar, on the other hand, he was also quite impressed by the chivalry, faithfulness, and fighting skill of the Rajputs, and so he preferred to befriend them instead of turning them as his enemies. तो अकबर पहले शासक थे जिन्होंने एक योजना के तहत उन्होंने उनके साथ एक नीति बनाई थी राजपूतों के प्रति, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं या तथ्य हैं या तत्व हैं जिसके कारण अकबर उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहते थे। अकबर जो थे वे उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और वो चाहते थे कि भारत में जितना हो सके क्षेत्र वो उनके अधीन आए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम था कि उनके लिए राजपूतों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना या उनको अपने अधीन लाना। और दूसरी ओर वे राजपूतों की युद्ध तकनीक से या उनके वफादारी से काफ़ी ही वे खुश थे, और इसलिए वे चाहते थे कि उनको अपने दुश्मन बनाने की बजाय वे उन्हें अपने मित्र बनाना चाहते थे। First of all, to win the Rajputs to his side, Akbar concluded a number of matrimonial alliances with the Rajputs. The first matrimonial alliance was in 1562. In this year, Akbar married the daughter of Raja Bharmal of Amber. As a result of his marriage, he took Bhagwan Das and Man Singh into Mughal service. Akbar also married Rajput princes from Bikaner and Jaisalmer. Later, his son Prince Salim married the daughter of Raja Bhagwan Das. इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले अकबर चाहते थे कि राजपूत को अपनी तरफ ले आए, अपने अधीन ले आए, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने वैवाहिक संबंध या वैवाहिक नीति को स्थापित किया राजपूतों के साथ। और इसी क्रम में 1562 में उन्होंने राजा भरमल की पुत्री के साथ विवाह किया, और इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने भगवान दास और मान सिंह को मुगल सेना में लिया क्योंकि वो काफ़ी योग्य भी थे। अकबर ने इसके अतिरिक्त राजपूत राजकुमारी से विवाह किया जो बीकानेर की थी, और जैसलमेर की राजकुमारियों के साथ भी विवाह किया, और इसके पश्चात उनके पुत्र शहजादे सलीम ने भी राजा भगवान दास की पुत्री के साथ विवाह किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने एक घनिष्ठ संबंध उनके साथ स्थापित किया था और उनको अपनी सेना में लिया था। अगर हम उनके 9 रत्नों में भी देखेंगे, अगर हम उसकी चर्चा करें तो इसमें भी राजपूतों का उल्लेख मिलता है, और इस मान सिंह थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके के साथ इनके साथ अपने संबंध स्थापित किए। सो वी सी दैट he had concluded many relations with the Rajputs, and which was pre-planned, and to bring them under his sovereignty, as well as he was quite inspired by the war technique, and thus he took these various measures to establish a healthy relationship with the Rajputs. अब हम देखेंगे अगले शासक के बारे में जो कि थे जहांगीर। जहांगीर ने अपने पिता की नीति को जारी रखा और वे राजपूतों के प्रति उदार थे, और अपने शासनकाल में उन्होंने उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या काफ़ी कम कर दी। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुत करने के लिए मजबूत करने का प्रयास किया, जिससे अब तक इसे मना कर दिया गया था, और अपने शासनकाल की शुरुआत से ही मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक के बाद एक कई मुगल सेनाएं उन्हें भेजी थी। राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह उत्साह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई की, और उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि पूरा मेवाड़ व्यवहारिक रूप से नष्ट हो गया था और मुगलों ने हर जगह सैन्य चौकियों की स्थापना कर ली थी। लेकिन अंत में उन्होंने शांति संधि स्थापित कर लेती है, सहमति हो उनके बीच, और इस पर मुगलों और राजपूतों की संधि होती है और उनमें समझौता हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के नीति के
तरह तो नहीं, लेकिन कुछ इसमें संघर्ष तो होता है, लेकिन अंत में एक संधि स्थापित के माध्यम से दोनों के जो संबंध हैं वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाते हैं. So as far as the policy of Jahangir is concerned, Jahangir continued the policy of his father in the same manner. He was of course liberal towards the Rajputs, though the number of the Rajputs on higher posts decreased during his reign, but he also attempted to force Mewar to submission, which it had refused so far. He sent several Mughal forces one after another to invade Mewar right from the beginning of his reign. Rana Amar Singh fought against the Mughals, but at last treaty was signed between the Mughals in 1615 and thus peace was established. अब हम बात करेंगे शाहजहां की. जहां तक शाहजहां की बात आती है, शाहजहां ने भी उसी प्रकार अपने पिता और दादा की नीति अपनाई. उसने उन सभी को उचित सम्मान दिया और उनसे मित्रता की. हालांकि उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या घटती चली गई, फिर भी राजपूत उसके प्रति वफादार रहे. जबकि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह ने उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा दी, और इसी प्रकार मेवाड़ के राणा जगत सिंह और राणा राज सिंह ने भी उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे. So Jahangir was also pursued the policy of his father and grandfather, and he gave them all due honor and befriended them. Though the number of Rajputs on higher posts went on decreasing from time to time, yet the Rajputs remained loyal to him, while Raja Jaswant Singh of Marwar and Raja Jai Singh of Jaipur served him loyally. Rana Jagat Singh and Rana Raj Singh of Mewar respectively maintained good relations with him. So we see that Shah Jahan, like Jahangir, he also continued the same policy, and he also was able to maintain almost the same relationship with the Rajputs as was during the time of his grandfather and father. Now finally we'll discuss about Aurangzeb's relation with the Rajputs, which is also very important like Akbar. अब हम अंत में औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करेंगे, उनके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, जो अकबर की तरह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है. During the initial years of his reign, Aurangzeb continued the policy of his predecessors towards the Rajput. Therefore, he appoints some of the Rajputs to the Mughal services like Jaswant Singh of Mewar and Jai Singh of Amber. शुरुआती दौर में, अपने शासनकाल के जब शुरुआती दौर में औरंगजेब ने भी उसी प्रकार के अपने पूर्वजों की नीति को उन्होंने जारी रखा, और उसी प्रकार की नीति उन्होंने संबंध जो है राजपूतों के साथ रखा, और इसलिए उन्होंने कुछ राजपूतों की नियुक्ति की मुगल सेवा में, जैसे जसवंत सिंह मेवाड़ के हो गए या अंबर के जय सिंह हो गए. बट औरंगजेब वॉज अ स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम एंड देयरफॉर ही वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया इनटू एन इस्लामिक एम्पायर. लेकिन औरंगजेब जो थे वो बहुत कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, और इसलिए वे चाहते थे कि पूरे भारत को वो एक इस्लामिक साम्राज्य में परिवर्तित कर दे. Aurangzeb was also an autocrat, and therefore he wanted to conquer every tribe and community that stands on his way so as to add to the Mughal territory. औरंगजेब एक निरंकुश शासक थे, और वे चाहते थे कि वे सारे जनजातियों और सारे समाज पर वे अधिकार कर लें, अपने अधीन कर लें, और जो भी उनके मार्ग में आएगा उनको सारे को मुगल साम्राज्य के अधीन ले आए. Aurangzeb also suspects that the Rajputs were in alliance with the Marathas, who were rising to power on the Shivaji. Therefore, he wanted to get rid of them in every possible way. औरंगजेब को ये शक था कि राजपूत जो थे उनके साथ वे मराठों से मिले हुए थे, और शिवाजी जो थे वे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे, जिनके साथ मुगलों की शत्रुता पहले से शत्रुता थी. इसलिए औरंगजेब चाहते थे कि वे राजपूतों को निष्कासित कर दें. Due to the above reasons, Aurangzeb reversed the Rajput policy that was emancipated by Akbar, and he began to follow a policy of hostility and aggressive warfare towards the Rajputs. इन सभी कारणों के कारण औरंगजेब ने जो राजपूत नीति थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी बाबर के समय से,
इसे पूरी तरह से पलट दिया, या कह सकते हैं पूरी तरह से विपरीत हो गया, जिसे अकबर ने शुरुआत की थी, बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए थे। और इसके विपरीत उन्होंने राजपूतों के विरुद्ध आक्रामक नीति को अपनाया, उनके साथ शत्रुता की नीति अपनाई राजपूतों के विरुद्ध, और इस प्रकार उनके जो संबंध है वो खराब हो गए और राजपूतों के साथ, मराठों के साथ भी उनकी शत्रुता बढ़ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार बाबर से लेकर मुख्य रूप से अगर हम हुमायूं को देखें या अकबर को देखें, और विशेष रूप से अकबर की राजपूत नीति के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए या अपने लाभ के लिए एक अच्छे संबंध बनाए थे, अंत में हम देखेंगे कि औरंगजेब ने उसी नीति को पलट दिया, या जस्ट उसके विपरीत उन्होंने उनको अपने शत्रु बना लिया, जिसके कारण कहीं न कहीं ये भी उनको मुगल साम्राज्य को क्षति पहुंचाती है। सो इन दिस वे द पॉलिसी विच वाज एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग बैक बाय बाबर एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम और रेन ऑफ अकबर was reversed during the reign of Aurangzeb, and this way the Rajputs as well as the Marathas became the permanent enemies of the Mughals, and thus it also caused damage to the Mughal empire. So I hope you have understood. So that's all for today. Thank you.